So guys, in today's class, we are going to start chapter two. The chapter two of the book is based on probability. लेकिन I think before we delve into that, I think the most important thing that we need to discuss is how to count things. Is how to count things. आज का lecture थोड़ा सा interesting भी है, and I'll try to make this more interesting and less boring for all of you. So in today's class, we are going, let me share the outline with you. So the outline is that I'll be discussing some concepts about how do we do these things. We will start with sample space, and then I'll discuss the events, and then I'll show you how to visualize the sample space and events on Venn diagram. And then we will do some practice questions. Then after the practice questions, we will be learning about the multiplication rule, the permutations, the combinations, and then there are multiple combinations questions. And lastly, we will be doing some practice questions again to revise the whole content of the class. Okay. So this is the gist of today's lecture. So first of all, अच्छा practice questions मैं बता दूँ, questions हम practice अभी हम करेंगे. लेकिन I may ask Riba or Arbab, or I'll be making the Google Forms myself, in which these questions will be uploaded for you again, and you have to submit the solution to those questions on Google Form over the weekend, and this goes without saying that submission will be graded. So the grade will be dependent on your submission of all questions, not just submit it और उसको खाली छोड़ देना, लेकिन you have to attempt each and every question, and there will be some additional questions as well. So yeah. So guys, in today's class हम counting करने जा रहे हैं. Counting looks very simple thing, लेकिन it can get intimidating sometimes because of the fact there are multiple rules that we have to focus while we are counting things. और counting करते हुए we have to make sure that our counting is correct. So whenever आप लोगों ने chapter 1 में मैंने आपको बताया था कि there are sample we always try to do some experiments. लेकिन whenever we do some experiments, there are some possible scenarios. ठीक है, there are some possible scenarios. For example, जैसे हम हार्ट अटैक, हम जब बात करते हैं कोविड की, कोविड में हम लोग क्या हम बात कर रहे थे, कोविड में बात ये कर रहे थे कि अगर आपको कोविड हो जाता है तो दो सिनेरियोज हैं. एक, या तो आप रिकवर कर जाओगे या आपकी डेथ हो जाएगी. दीज आर द टू पॉसिबल सिनेरियोज. So the sample space is the combination of all those possible scenarios. So all those possible scenarios will be a part of that. So ये चीज आपने याद रखनी है कि sample space में you need to account for all the possible scenarios. ठीक है, you need to account for all the possible scenarios. So if I ask you, what is a sample space if you toss a coin, what will you say to me? How many scenarios are possible in that case? Can anyone tell me? There are two scenarios. So let me so guys, एक मिनट मुझे देना, मैं ना मेरी screen I need to use my tablet and it's creating some problems for me. Just give me 1 second. I hope you can still see my screen, in which I can write. Ariba, can you confirm कि आपकी presentation दिखाई दे रही है मेरी? We can see your folder, sir. You can see my folders. Okay. Now can you see my screen? Sample space. Yes. That's okay. Thank you. Okay. So guys, someone said there will be two scenarios. Let me open the chat as well. So Salih, what could be those two possible scenarios? Sir, heads or tails? It could be heads or tails. It could be heads or tails.
तो इट कुड बी हेड्स और टेल्स। आप लोगों ने इसको अब लिखना कैसे है, आप लोगों ने लिखना इसको ऐसे है, यू नीड टू डू लाइक दिस। एस, S is the S stands for the sample space. S stands for the sample space, and you need to write it like this: H or C. ठीक है। और अगर आपने बताना है, अगर if I ask you the size of sample space, if I ask you the size of sample space, you will be writing like this: N bracket S is equal to 2. So let's move forward and ask you this question: what is the sample space if you throw a dice? 6. So, Maniba, can you identify those 6 possible scenarios for me? Here the numbers 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So there will be numbers from 1, 2, 3, 4, 5, 6. And what could be our sample space if we are interested in only getting an even or odd number on a dice? Sir, What's the 3. 3. Nani, what if we're interested in only getting an even or odd number on a dice? Yeah, उसकी for हमारे sample- even it's going to be 3, and for odd it's going to be 3. Okay. So in that case, in that case मैं आपको बताता हूँ, in that case we have only 2 numbers. It can only be even or it can be odd. You are right, Khadija, you are right, you are not wrong. I'm just trying to say कि अगर हमने सिर्फ देखना है कि even या odd आना है, तो it can be only 2 categories. It can be only 2 possible scenarios. ठीक है? In that case, we have 2 possible scenarios. Now, guys, can you tell me what if you flip 2 coins? What's going to happen then? How many possible scenarios are in that case then? Khadija. 4. 4. Khadija, can you highlight those 4 scenarios for me? Yes. Head, 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 tail, head, tail, 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 head. tail, tail, and tail. Thank you, Khadija. अच्छा, ये सैंपल स्पेस हम ऐसे बनाते हैं, लेकिन ये बहुत सिंपल ये these are very simple these are very simple things. These are very simple examples. So in order to so how these things comes so ये चीजें बनती कैसे हैं, चीजें बनती कैसे हैं guys, कि we need to create a tree diagram. We need to create a tree diagram. So tree diagram is this. So tree diagram is this. तो ट्री डायग्राम में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे अगर हम नोट करते हैं, और अब आपका अगला सवाल आप लोगों के लिए आने वाला है. लेट मी एनोटेट दिस अगेन. हियर वी गो. ट्री डायग्राम में आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे आपका पहला आपके राउंड आपका शुरू हो रहा है. इस पहले राउंड में क्या है, यू हैव हेड ओवर हेयर और यू हैव टेल ओवर हेयर. सैंपल स्पेस क्या हमने बताया था, हमारा सैंपल स्पेस क्या था, उसके हमारा सैंपल स्पेस था हमारा 2. आवर सैंपल स्पेस वाज Okay. Question 1. Okay. ये पहला था. दूसरा हमने क्या बताया था, हमने कहा था कि हमारा 6 है. उसमें क्या हमने किया 1 2 3 4 5 और 6 हमने इस तरह से बनाया. अब दूसरे केस में जब हमने कहा था कि अगर हम 2 दफा अपना डाइस फेंकें, इफ वी फ्लिप कॉइंस 2 टाइम्स, उस केस में हमारा सैंपल स्पेस क्या है, उसमें हमें सैंपल स्पेस ये है, हेड इधर है, ये हमने एक दफा किया, और ये टेल एक दफा पहले में हेड या टेल आ सकता है. अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा ये, इसके बाद दोबारा हमारा यहाँ पे अगर दोबारा फेंके तो हमारे पास हेड आ जाएगा और टेल आ जाएगा. सिमिलरली ओवर हेयर, यहाँ पे हमारा हेड आ गया और हमारा यहाँ पे टेल आ गया. तो गाइस हमारे पास कितनी सैंपल स्पेस बन रही है, Four. 4. और आपने इसको लिखना कैसे, आपने इसको ऐसे लिखना है एच एच. तो वी लाइक राइट इट एट दिस एच एच, फिर एच टी, और फिर टी एच, और साथ फिर टी टी. तो गाइज जो खदीजा ने पहले अभी आपको 4 वो सिनेरियोज बताए थे आपको, वो खदीजा इस बेस पे बता रही थी. खदीजा इनके जहन में
सबकॉन्शियसली एक टी डायग्राम बनी हुई थी, उसने उस टी डायग्राम को यूज करके आप लोगों के सामने ये 4 सिनेरियोस उसने पेश किए। तो we take it like this. Okay, we take it like this. Now let's do some experiment for you guys. So guys, now the floor is open for all of you now. The answer to the above questions to draw a tree diagram. तो मैंने questions आप लोगों से share किए थे. Now let's complicate a situation. How can we complicate a situation? An experiment consists of flipping a coin and then flipping it second time if the head comes at first, and if tail comes on the first flip, then a die will be tossed once. Compute the sample space and draw the possible scenarios. I'll give you 1 minute for it, and then I can pick randomly anyone from the class, and that will be pure random. So each of you have the equal chance of being picked up. That's me talking in stats. So each of you will have equal chance to be picked up. जी खदीजा. Okay, आपने पहले let's should we wait like 1 minute that Yeah, everyone else we need to wait for like 1 minute. So so everyone can give it a try. Let me pause the recording so we can save some bandwidth as well. जी हसन, tell me मैं क्या करूँ? What should I how can I draw this T diagram? So first for the पहले तो हम कॉइन फ्लिप करेंगे, तो सर कॉइन फ्लिप करने की 2 आउटकम्स होंगी, एक होगा Okay. हेड और एक होगा टेल. अच्छा एक मिनट let me use the annotation. वह बोलेगी कि मेरा annotation. So okay, so you are saying कि हम पहले head या tail करेंगे. Yes sir. Okay, so head और tail. ठीक है, अब क्या तो करेंगे? सर इट सेज कि अगर हेड आता है पहले तो फिर then we will toss the coin again. Okay, तो there will be 2 outcomes after a head, which will be head and tail. okay, so it will be And head or tail. yes, and so if tail comes, then they will toss a die. Okay, So dice की 6 outcomes होंगी, 1 2 3 4 5 6. So there die will के be a 6 total of according. So there will be like 1, 2, 3, 4, 4 5 6. 5 and 6. ठीक है? Yes. So our total sample space will come out to be like अपना sample अगर लिखना शुरू करें, अपना sample तुम्हारा बनेगा H H H T and Yes. T1 T1 Yes. T2 T3 T3 and all the way to T6. 6. तो Yes. ये टोटल कितना स्पेस बन गया? टोटल कितनी स्पेस बनी हमारी? व्हाट्स द सैंपल साइज? व्हाट्स द सैंपल 8. स्पेस? साइज सैंपल स्पेस इट्स 8. ठीक है? So this is 8. So guys, this is how we draw the sample spaces. ठीक है? We compute the sample spaces using by drawing a T diagram. अभी मैं I'll simplify this method without so this is one of the way. This is one of the way to count the sample space. I'll be showing the other and more efficient way of the counting the sample size or determining sample space size in just a while. Okay. And और अगर if I'm mistakenly saying कि यार मैं sample size की बात कर रहा हूँ तो उसको sample space का size समझना. ठीक है? Sample size is a very different thing. So now let's come towards the second thing, which is the events. Events is the possible subset of experiment. ठीक है? Events के केस में हम लोग बात करेंगे possible subset of the experiment. For example, इसको हम डिवाइस करते हैं Venn diagram से. Venn diagram पे हम लोग क्या करते हैं guys? Can anyone tell me Venn diagram क्या थी? आप लोगों ने अपने पढ़ी होगी अपने उसके अंदर अपनी before अपने FSC A levels में. What is Venn diagram? जी मिनाइल. Sir, it is a visualization of data in which you can see the overlap between 2 categories of data बिल्कुल or more. बिल्कुल. खदीजा.
And also उसके साथ like थोड़ा बहुत brush up करने की जरूरत है O level math, but उसके साथ you can also see the frequency, right? Yeah, बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, now let me visualize the events for you. So guys, this is your sample space. ठीक है? This is your sample space, and there is this one event which is over here. So your sample space is this. अब इस sample space समझो कि how many possible scenarios are there while throwing a dice. There are 6 scenarios, and this A event corresponds to the number, let's say, of getting 6. ठीक है? This A event corresponds to getting 6 on a die. So there are total 6 outcomes. Total outcomes are 6. Total outcomes or sample space, the sample space size, it's 6, and this is one of the possible event. One of the possible events. So there is one terminology which is called S, which we called the sample size. A, which is the event A. Can anyone tell me what is this? A raised to power C. What is this? Khadija. Sir, A complement C. A complement C. And how can we define A complement C? So all outcomes in which 6 didn't come in the dice, so like हाँ, so basically ये 1, क्या 2, होगा? 3, 4, So 5. basically all outcomes excluding event A. All outcomes excluding event A. In mathematics, we will define it like this: S minus A. तो इन दिस केस अगर मैं कह रहा हूँ ये AC है, तो मेरे सैंपल स्पेस में अगर मुझे इसको दिखाना हो तो मैं किधर दिखाऊंगा इसे? वेयर विल आई शो इट? जी तैमूर. सर ये सारा जो बॉक्स के अंदर एरिया अदर देन द ए वाला सर्कल. हाँ बिल्कुल. तो ये हमारा एरिया AC है. तो यहाँ पे अगर 6 है तो ये हमारा एरिया जो है वो AC है. ठीक है, एक ये चीज़ हो गई. इसके अलावा अब हम आगे आते हैं S के ऊपर. ठीक है, अब हम एक और डिस्कस करना है. लेट्स से देयर इज वन इवेंट व्हिच इज दिस. A इज 1, 2 and 3, and there's this B event which is 3, 4 and 5. ठीक है, there are these two events. Can you draw them on a Venn diagram? Can you draw them on a Venn diagram? How will we draw it? Khadija. सर पहले तो जिस तरह ऊपर किया हुआ है 2 ovals या circles with an overlap in between. Okay. तो overlap में हम 3 डाल देंगे if we're Okay. talking about what the event is, but if we're kind of writing frequency तो सिर्फ I think हम overlap में do we write frequency or do we write the We write that number which is appearing over here. okay तो फिर In this- overlap वाले So in this case, this is how we will. Pardon my drawing, guys. It's very hard to draw on tablets. I miss my whiteboards. तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपने क्या किया? आपका 1, 2 इसके अंदर आ गया. ठीक है, आपका 1, 2 इधर आ गया, और आपका 4 और 5 इधर आ गया, और आपका 3 इधर आ गया. So what is our A union B? Can anyone tell me this? What is our A union B? G Isba. Sir, 1, 2, 3, 4, 5. So it will be from 1, 2,
3, 4 and 5। अच्छा, और ये जो एरिया है ए यूनियन बी है, और ये वाला एरिया जो होगा, व्हाट इज दिस एरिया? ये जो बाहर वाला एरिया है, इस एरिया को मैं क्या बोलूँगा? व्हाट इज दिस एरिया? इस बार, सॉरी, इस बार से बात हो गई थी, हम ऐसा करते हैं, हदीजा से भी हो गई है, हसन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन। Walaikum assalam, sir. जी हसन। Sir, it's A union B complement. The ए complement यूनियन of बी A union. कॉम्प्लीमेंट, यस। तो ये क्या आपका है? ये आपका बन गया ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यानी यानी कि all those events that are neither part of event A or neither or nor part the part of B. I repeat my statement again. All those events that are neither the part of event A nor event B. ठीक है, तो ये हो गया, और आपको A इंटरसेक्शन B भी समझ आ गया। व्हाट इज A इंटरसेक्शन B? यहाँ पे A इंटरसेक्शन B किधर है गाइस? थ्री। तो बेसिकली यहाँ पे 3 पे है, तो हमने इसको यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देते हैं, दिस इज अवर इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये हमारी हमने वेन डायग्राम्स कर ली। नाउ गाइस, आई एम अगेन टर्निंग द फ्लोर टुवर्ड्स यू गाइस। देयर आर सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस दैट आई वुड लाइक यू गाइस टू सॉल्व फर्स्ट, एंड देन वी विल कंटिन्यू। अच्छा गाइस, ये मैं बता दूं कि ये वो जो सोल्यूशन जो हम अभी सवालों को हम डिस्कस करेंगे ना, दे वॉन्ट बी रिकॉर्डेड, they won't be recorded at all. So I want you guys to make notes. So whenever the practice question comes for your graded assignment, you have the solution in front of you. So make sure that you do it on your own at this time. So let me pause let me show you the questions first. Isbar, do you have a question? No, sir. My hand was Okay. raised from before. Okay. Sorry. No problem. Chalo. Let me pause the recording, guys. Okay, so recording is in session. अच्छा गाइस, ये अगला सवाल भी ना इसी ही रेंज में है। अगला सवाल जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ये सवाल भी बिल्कुल ऐसे ही है, और यू हैव टू सॉल्व दिस थिंग। अगर हमारे लेक्चर वी आर एबल टू एंड आवर लेक्चर बिफोर टाइम, then we will stay and we will try to solve this question together. Otherwise you can do this question when after the class. Amar. Amar, do you have a question? Okay. Yes, sir. पहले से। No problem. Okay. Now let's move forward towards the sample points. So अब the thing is this कि ना, अभी तो यार ये बहुत छोटी प्रॉब्लम्स थी जो भी आपने की है। There are only like 3 to 4 possible solutions या possible sets. असल में ऐसा नहीं होता। असल में तो there are like 100 ways या multiple ways to do all of these things. तो लिहाजा we need to be very smart about this thing कि यार हमें numbers count कैसे करने हैं। So one of the most important thing which I'm going to do over here is the multiplication rule. The multiplication rule is, if each operation can be performed in n ways, and each of those ways can be performed in n2 ways, then the total operation can be performed in n1 into n2 ways. So what I'm trying to say is this कि आपके पास there are like n1 into n2 ways हैं. Let's revise the previous fishing question again. अब मैं क्या करता हूँ, मैं आप लोगों के लिए फिशिंग क्वेश्चन चलो आप लोगों के लिए कर देते हैं, क्योंकि पहली क्लास है। सर एक वो हमारा बना हुआ है, डेकोरम बना हुआ है, तो हम थोड़ा सा इस सवाल को मैं हल करूँगा आपके लिए। तो अभी अगर मैं सवाल को वैसे अपना सॉल्व करना शुरू करूँ, अगर मैं सवाल को दोबारा सॉल्व कर, इंजीनियरिंग फर्म जिसने सिंध में देखना है कि ये फिशिंग सेफ है कि नहीं है, सेफ। so samples are taken from 3 streams of Indus River. यहाँ पे सैंपल था, ये इट्स अ सैंपल। सैंपल्स में यहाँ पे भी है सैंपल है। अब यहाँ पे क्या 2 इवेंट्स कैन हैपन एट वंस। एक इवेंट हो सकता है या तो सेफर फिशिंग है या सेफर फिशिंग नहीं है। ओनली दीज 2 इवेंट्स कैन हैपन। तो अब क्या होगा जनाब, अब आपके पास अभी कितना आपके पास यहाँ पर है सेफर फिशिंग और नॉट सेफर फिशिंग। तो आपका पहला दरिया जो है, पहले दरिया पे क्या होगा, पहले दरिया पे आपने पहला दरिया टेस्ट किया, इट्स सेफ और नॉट सेफ।
सेफ और नॉट सेफ, ठीक है। ये आपका सेफ और नॉट सेफ, ये आपका पहला दरिया हो गया। दूसरा दरिया पे क्या हो सकता है? दूसरे दरिया पे भी यही सिनेरियो हो सकता है कि यार दूसरा दरिया या तो नॉट सेफ है या वो सेफ है। फिर यहाँ पे भी यही सिनेरियो है कि एन और एफ, और सेम गोस हियर, यहाँ पे फिर एन और एफ आ जाएगा, एन और एफ आ जाएगा, और ये इस तरफ से बन जाएगा। So they will be like N, F, and F, and F, and then NF। अगर मैं काउंट करना शुरू करूँ तो ये मेरा बनेगा जनाब 1 2 3 4 5 6 7 8 8। तो देयर आर द सैंपल स्पेसेस 8, लेकिन देयर शुड बी सम सिंपलर वे। सिंपलर वे क्या है जनाब? 3 दरिया हैं। कितने दरिया हैं गाइस? देयर आर 3 रिवर्स। अब 3 रिवर्स के लिए मैं क्या करूँगा? और अब आदिल का ना, अब आदिल के लिए, अब आदिल खुश होने वाला है। So there are like 3 rivers. So if n relation can be formed in n ways and n2 can be formed in n2 ways, and total number of ways will be n1 into n2। अब मुझे बताओ, ये पहला दरिया है, ये दूसरा दरिया है, और ये तीसरा दरिया है। अब इन दोनों दरिया, अब अगर मैं इसको सॉल्व करना शुरू करूं तो मुझे बताओ यहाँ पर पहले दरिया के कितने सिनेरियोज है मेरे पास? मेरे पास पहले दरिया के कितने सिनेरियोज होंगे? इट कैन आइदर बी safe or not safe, so there are 2 scenarios। For second river it again depends on 2 things, या safe है या safe नहीं है, और आखिरी में भी क्या होगा? वो safe है या safe नहीं है। तो टोटल कितना निकला गाइस हमारा? 8। there we go, no need for tree diagram। खत्म होगी ट्री डायग्राम की बातें, सारी पुरानी बातें। अगला सवाल, लिस्ट द एलिमेंट। जी दाऊद। सर 6 नहीं होगा? सर आप कैसे अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो टी डायग्राम है दैट इज वन स्ट्रीम, then you are corresponding that one stream into further 2 streams, then you are taking it to 3, there are 3 parallel streams basically, and there will be 6 sample space I think। दाऊद ऐसा से देखो ना कि हमारे पास सिनेरियोस बेसिकली ये हैं कि हम लोग करना, जैसे हमने टॉस हमने टॉइन टॉस किया था हमने। अब टॉइन टॉस में तो यही था ना कि हमने हेड टेल्स लिए, फिर हमने हेड टेल्स आगे लिए, और फिर हम हेड टेल्स आगे ले रहे हैं हम लोग। तो दीज आर लाइक इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब यहाँ पे सर सोचे ना कि आप इस इवेंट को ऐसे सोचो कि आप ये कह रहे हो कि यार व्हाट कुड बी द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, व्हाट वुड बी द पॉसिबल सिलेक्शंस। हो सकता है कि पहला दरिया जो हो वो खराब हो, इट्स नॉट सेफ फॉर फिशिंग, लेकिन दूसरा दरिया जो है वो ठीक है, और तीसरा दरिया जो है वो फिर खराब है। तो लेकिन सर वो देखें, ये तो assumptions है ना। देखें, अगर देखें we have to see what the question statement is। we need to count this is where the real thing is। we need to count all the possible assumptions कि what could be the possible assumptions in that case, कि उन टोटल दरियाओं की टोटल assumptions क्या हो सकती हैं। जो मैंने यहाँ पे टी डायग्राम मैंने बनाई है, उस टी डायग्राम को मैंने समराइज कैसे करनी। एक तरीका तो होता है मैं टी डायग्राम पे हर वो सिनेरियो काउंट करता रहूँ मैं, एंड द सेकंड थिंग इज कि मैं कोई सिंपल सिनेरियो ढूंढूं जिससे मैं उसको मैं जल्दी ढूंढ लूँ। अब आप ये सोचो दाऊद कि अगर यहाँ पर एक ही दरिया में कुछ 4 से 5 सिनेरियोज हैं, यानी सेफ फॉर फिशिंग, नॉट सेफ फॉर फिशिंग, अब 5 सिनेरियोज में बनते जा रहे हैं, और मैं 5 को यहाँ पे लेके जाना शुरू कर दूँ तो इट विल टेक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू कम अप विद दैट नंबर। No, my question is a bit different actually. My question is a little bit different, sir। Can you please elaborate? You are assuming we will take one stream at a time. Within that, then you are drawing 2 more streams. Then you are from those 2 streams, you are putting 3 streams in front of them. The way you are drawing the tree diagram. The question didn't give us any such scenario। I'm sorry, I'm sorry, I can't. I'm so sorry, I can't get your question. So what you? Okay, if let me. I think you can. My idea of this question, I'll be drawing tree diagram like 1 2 3। आप इस तरह से ड्रॉ करोगे, आप इस तरह से ड्रॉ करोगे, मैं बताता हूँ। आप करोगे ये NF है, ये पहला है, ठीक है। फिर आप दूसरे पे आओगे, और आप दूसरे पे आओगे, फिर वो NF है, ठीक है। और आप तीसरे पे आओगे, और आप तीसरे पे आगे फिर कहोगे यार ये NF है।
आप ये कह रहे हो. So these are like 6 I will scenarios. say this because that's how I am interpreting the question statement actually. Okay. It's So- what's the question statement? So यहाँ पे बेसिकली अब आप मुझे ये बताएं, आप अगर मुझे ये बताइएगा कि अगर मुझे ये कहना हो, अगर मुझे यहाँ पे ये चीज़ चूज करना हो कि NNN आपके सिनेरियोज में यहाँ पे एक सिनेरियो ये बन रहा है और दूसरा सिनेरियो ये बन रहा है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपको सारे सिनेरियोज को आपने चूज करना है कि अच्छा जी एक दरिया में अगर n है तो उसके बाद आगे उसके पास ऑप्शंस कितनी है, यानी अगर एक दरिया खराब हो गया तो उसके पास ऑप्शंस अभी हैं, उसके पास NF होगी और फिर आगे NF होगी. तो इस तरह से हमने उस सिचुएशन को हम लेके चले हैं हम लोग, जिस तरह से हमने सर वो हमने पहले क्वेश्चन सवाल में की किया. देखें इस तरह I'll take question की question statement I'll take the guide from you. questions Hmm. जी, Mhm. the previous questions where we have it's I think these are 3 parallel events. These are not okay? 3 parallel events. And These are not the 3 parallel tree events. diagram you are These are drawing not- is in series. These are not Okay. these are not 3 Basically, parallel events. तीनों rivers में से fish जो है वो एक ही time पे निकालेगा. I think there is something They are something appearing at in the the same question time. statement. Exactly. Yeah. So these are so what I'm trying to say is कि they are like what I'm trying to say is कि आपने दरियाओं के combinations निकालने हैं कि कौन सा दरिया खराब हो सकता है, कौन सा खराब नहीं हो सकता. So basically I'll explain this thing again Raut क्लास के बाद, क्योंकि अगर इसमें आपको इसमें confusion हो रही है. लेकिन guys if you take it like in the form of tree diagram, जी Manu. I'm sorry, I understand the tree diagram, but I don't understand when you wrote the 2/1 and the 2/2 and the 2/3, how that equals 8. ये वाली चीज जो है Yeah. इसमें ये देखो मनोज, आपका पहला जो दरिया है, उसमें आपके पास कितने सिनेरियोज हो सकती हैं. It can either be safe for fishing or not safe for fishing. No, I get that, but I don't know how it equals 8. 8 किस तरह से आया कि हमने मल्टीप्लिकेशन रूल है ना, मल्टीप्लिकेशन रूल में हमने कहा कि अगर एक चीज जो है वो यानी दे आर ऑल इंडिपेंडेंट इवेंट्स. एक दरिया के खराब होने से दूसरे दरिया पे कोई असर नहीं पड़ेगा. ये तो मनोज आपको समझ आ रही है ना ये वाली बात. Yes. यानी अगर एक दरिया जो है अगर वो खराब है तो उससे दूसरे दरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और तीसरे स्ट्रीम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो दे आर ऑल लाइक इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर. तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने मल्टीप्लिकेशन में हमने कहा ये है कि अगर एक ऑपरेशन जो है वो 2 तरीके से परफॉर्म हो सकता है और दूसरा भी 2 तरीके से परफॉर्म हो सकता है, तो वो टोटल हाउ मेनी टोटल वेज आर देयर? दे आर लाइक n1 into n2 ways. In this case there are 3 streams. Which is like n1 into n2 into n3. उस केस में क्या हुआ, उस केस में 8 हो गया. इस तरह से सोचो, इस सवाल को ना हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन रूल पे. लेट मी क्लियर दिस थिंग और हम लोग यहाँ पे क्लियर करके हम लोग यहाँ पे करते हैं. गाइस कॉइन को 2 दफ़ा टॉस किया था, क्या आया था? हेड टेल आया था. और दोबारा हमने यहाँ पे किया हेड टेल हेड और टेल, यही हो रहा था. यानी देयर आर 4 सिनेरियोज कमिंग आउट इन दैट केस कि हमें यहाँ पे 4 सिनेरियोज बन रहे हैं हमारे. देयर आर 4 सिनेरियोज. कैसे हुआ था उसमें? यहाँ पे क्या सीन है जनाब, एक अगर मैं कॉइन टॉस करता हूँ, अगर मैं एक कॉइन टॉस करूंगा तो कितने सिनेरियोज मेरे पास हैं? आई कैन आइदर गेट हेड और टेल 2. सिमिलरली अगर मैं दूसरी दफा कॉइन टॉस करूंगा तो क्या होगा? 2. और टोटल क्या बन के आया मेरे पास? इट विल बी 4. Manur, am I making sense? Sir, I get this, but then shouldn't the previous example be 6? Because if you do 2 times 2 times 2, देखो it's 6. उसमें भी क्या हो रहा है, उसमें 6 नहीं है, उसमें 8 है. उसमें 8 किस तरह से है कि देखो कि हमने एक स्ट्रीम पकड़ी है, उस स्ट्रीम के बाद दूसरी स्ट्रीम आ रही है. देयर आर लाइक 8, उसमें भी 8 सिनेरियोज बनेंगे. 8 सिनेरियोज उसमें इस तरह से बन रहे हैं कि आपकी पहली स्ट्रीम के खराब या सही होने से दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर आप लोग बताओ आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग में मसला बेसिकली ये आ रहा है. अगर मैं 3 दफ़ा कॉइन टॉस करता हूँ, हाँ ये वाला अब यहाँ पे इस तरह से समझते हैं चीज़ को. अगर मैं कॉइन 3 दफ़ा टॉस करूँ तो मेरे क्या सिनेरियोज बनेंगे? अगर मैं कॉइन Okay, I get it. I'm sorry, I get it. अगर मैं कॉइन Yeah, 3 it's दफ़ा टॉस different. करता हूँ
और यहाँ पे आपकी Word जो है दाऊद की भी बात क्लियर हो जाएगी, आई होप सो। H2 HT 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 और HT और यहाँ भी HT, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इस अगर अगर हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पे दाऊद की लॉजिक से ज्यादा हम चलते हैं, दाऊद साहब की लॉजिक के साथ, तो क्या होगा, HT यहाँ पे आ रहा है जनाब, HT यहाँ पे आ रहा है, HT यहाँ पे आ रहा है, एंड इट्स 6, दिस नॉट 6, दिस इज 2⁻3। एंड ये 2⁻3 कैसे आया, वो ऐसे आया 2 into 2 into 2 6। जैसे स्ट्रीम्स थी वैसे हमारे हेड्स हैं, दे आर ऑल इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, लेकिन उनके सिनेरियो को काउंट करेंगे तो हमारा हेड टेल, जिस तरह से मैंने यहाँ पे किया है, यहाँ पे 3 स्ट्रीम्स थी, तो मैंने 3 स्ट्रीम्स में क्या किया, मैं पहली स्ट्रीम पकड़ी, फिर दूसरी पकड़ी और फिर तीसरी पकड़ी। तो उस तरह से आपके इवेंट्स जो हैं, दोज इवेंट्स विल बी कमिंग आउट लाइक दिस वे। तो उस तरह से हम इसमें इवेंट को हम चूज करेंगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन रूल जो हमारा है, वो हमारा मल्टीप्लिकेशन हमारे काम को इस तरह से आसान करता है। आई जो एलिमेंट्स की लिस्टिंग है, मैं उस पर दोबारा आऊंगा मैं इसके ऊपर। So using this counting rule, now let's do this thing. Zaid is going to assemble a computer by himself. He has the choice of ordering chips from 2 brands. अब यहाँ पे ना a hard drive from 4, memory from 3, and accessory bundle from 5 local stores. How many ways can Zaid order the parts? How many ways can Zaid order the parts? So यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर हम लोग दोबारा मेडिटेशन अपनी पिक करते हैं। तो नाउ यू कैन सी कि अब यहाँ पे ना डिफरेंट चीज़ें हैं। यहाँ पे इसने जैद ने और चिप्स ऑर्डर करनी है और उसके पास 2 ब्रांड्स हैं, फिर उसने हार्ड ड्राइव ऑर्डर करनी है और उसके पास 4 ब्रांड्स हैं, तीसरा पे उसने मेमोरी ऑर्डर करनी है और उसके पास 3 ब्रांड्स हैं, एंड देन एक्सेसरी बंडल फ्रॉम द 5 लोकल स्टोर्स। तो दीज आर लाइक कितनी चीज़ें, 1 2 3 4। तो लिहाजा टोटल कम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं, टोटल अरेंजमेंट्स क्या हो सकती हैं, टोटल अरेंजमेंट्स वो कितनी होगी हमारे पास, यहाँ पर 1 2 3 4। राफे, कैन यू ओपन योर माइक? जी सर। तो राफे मुझे बताइएगा आप कि अगर मैं चिप्स ऑर्डर करनी है तो हमारे पास कितने ब्रांड्स हैं, तो वो कहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं? 2 ऑप्शंस होंगी। 2 से होगी। आगे हार्ड ड्राइव कहाँ से कर सकता है वो? 4। मेमोरी कहाँ से कर सकता है वो? 3 और फिर आगे 5। 3 और 5। अब अगर मैं इस चीज़ को जस्ट ट्राई टू इमेजिन गाइस दिस थिंग, अगर मैं इसको लेके चलना शुरू करूँ ट्री डायग्राम के ऊपर, तो क्या बनेगा? हार्ड ड्राइव वाले केस में यहाँ पे 2 सिनेरियोज हैं, सॉरी चिप्स फ्रॉम 2 ब्रांड्स। चिप्स जो हैं वो यहाँ पर जनाब 2 हैं, या तो वो यहाँ से लेगा या वो यहाँ से लेगा। दिस इज फ्रॉम हियर, दिस इज सी। अब हार्ड ड्राइव कहाँ से लेगा? हार्ड ड्राइव वो लेगा 4 जगह से, वो 4 जगह से ले सकता है। कभी हैप्पी सेंटर जाओ तो पता चलता है जनाब आपने एक चीज़ यहाँ से जोड़ी है, एक चीज़ वहाँ से जोड़ी है। तो यहाँ पे दूसरा हमारा बन गया ये हमारा 4 ये बन गया 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4। तो 4 हमारा यहाँ से बन गया। मेमोरी फ्रॉम 3। अब सोचो गाइज, यहाँ पे अगर सोचा जाए अगर, तो यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पर और 3 3 किस तरह से सिनेरियोस बढ़ते जा रहे हैं। Just think of making a T diagram. It will blow your mind. It will actually blow your mind. लेकिन by using this multiplication rule, you see how easily it can be done. 2 into 4 into 3 into 5, which is 4 into 8. It's 2 4 into 8, 8 into 5, 40, and 4 into 120. So there will be 120 branches. So there will जो आखिरी आपकी ब्रांच बनेगी वो आपकी बनेगी 120 ब्रांचेस के साथ। Is it clear guys? Yes, clear. Yes sir. ये इसमें ब्रांचेस को सोचें आप कि आप कोई चीज लेने जा रहे हैं तो उसमें चीजें किस तरह से वो बनती जा रही हैं वो, ठीक है ना। तो अगला सवाल ना ये थोड़ा सा ट्रिकी है। कैन एनीवन इफ यू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन? You're giving the following letter ABC. Your task is to arrange them in all possible arrangements. How many possible arrangements are there?
अगर आपको मैं ABC दे दूं तो आप इसको कैसे अरेंज कर सकते हो? थ्री फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। अहमद, ये जो चीज़ है 3 फैक्टोरियल, ये आपने कैसे किया? आपने क्या किया आपने? ए लेवल्स में सीखा था सर। इसमें सीखा था। इट्स अ गुड क्वेश्चन, इट्स अ गुड आंसर। लेट मी क्लैरिफाई दिस अगेन। 3 फैक्टोरियल हमने बोला क्यों? आपने बोला इस तरह से, कंसीडर गिविंग द फॉलोइंग लेटर्स ABC, योर टास्क इज टू अरेंज देम इन ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स। अब इसके अब देखो अहमद, आपके पास ना 3 डिजिट्स पड़े हुए हैं, आपके पास 3 है और आपने तीनों को अरेंज करना है। अगर आपने A चूज कर ली है तो विच मीन्स यू आपके पास अब A नहीं रहा। अब आपके पास कितने डिजिट्स रह गए अहमद पीछे? 2 2। और 2 करने के बाद अब आखिरी डिजिट्स यहाँ पे कितने रह गए आपके पास? 1 1। तो ये क्या बना है अहमद? 3 फैक्टोरियल बना, और इसको ये 6 आ गया। तो देख हाँ रहे जी। हो फैक्टोरियल के अंदर भी क्या हो रहा है? फैक्टोरियल के अंदर भी वी आर अप्लाइंग अ मल्टीप्लिकेशन रूल, जी वी आर अप्लाइंग अ मल्टीप्लिकेशन रूल। जी So this is how the multiplication rule is associated with Ji Hassan. Sir, in the previous question, it was explicitly listed or mentioned that a particular number cannot be used twice. हाँ, However, in बिल्कुल। this case, जी जी। it just says that we have A, B, C, and we are talking about all possible arrangements. So, Arrangements, yeah. we can use A twice, maybe, or since there is no restriction in the statement of the question. Okay, I think I'll agree over. I think I'll agree with you over here, Hassan. यहाँ पे आपके पास ठीक है कि यहाँ पे इस चीज़ पे मैं यहाँ पे इसको मैं लिखना चाहिए था। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, without replacement. Now I think this questions I think now this makes more sense. लेकिन अगर मेरे पास ABC है, अगर मेरी उसमें अंडरस्टैंडिंग ये है बेसिकली कि अगर if I give you 3 letters I cannot use them again and again, लेकिन ठीक है यहाँ विदाउट रिप्लेसमेंट आप ऐड कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन रूल यहाँ पे इस तरह से हम अप्लाई करते हैं। और यहाँ मल्टीप्लिकेशन रूल में अभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो आने वाली है वो अब ये जो हमने ये 3 फैक्टोरियल लिखा है ना, हमने 3 फैक्टोरियल। जी हसन। So what if we do not add this thing without replacement, then how we are going to proceed on this question? So basically Hassan, I'll make sure कि जो questions जो आपके पास होंगे उसमें the assumption is made clear to you. In fact, I would make those questions solved by TS first, so that will help me in gauging whether they are able to get the questions in a right way or not. So this will so I think that will be one of the way. But I'll make sure that the questions are crispier and they are up to the point. No, sir, I'm not talking about an error in the statement of the question. I'm saying कि अगर इसको इसी तरह रखते हैं, let's say कि question जो है वो उसमें आपने without replacement नहीं डाला, हाँ। तो क्या ये valid question है मेरे ख्याल में? फिर बिल्कुल it's a valid question. क्योंकि देखो ABC की फिर इस सिनेरियो में कैसे सॉल्व? मैं आपको दिखाता हूँ। ABC ये ना ABC ये आपके पास, ठीक है। अब आप इसको हमने अरेंज करना हुआ आपने इन डिफरेंट ऑर्डर्स। तो आप क्या करोगे, जैसा मैं ठीक डायग्राम बना रहा था उसमें बेसिकली क्या था कि आपके पास आप क्या कर सकते हो, आप पहले ABC लिख सकते हो, फिर आप क्या लिख सकते हो, आप ACB लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपके सिनेरियोस चल रहे हैं। तो क्या आपने इन्हीं ऑर्डर्स को अरेंज करना है। सो यू हैव टू अरेंज दीज नंबर्स, यू कैन नॉट रिपीट देम अगेन एंड अगेन एंड अगेन अगेन। आप इसको ABC ही आप यूज करोगे आप इसे, यानी आप ABC आप इन्हीं को आपने अरेंज करना है। अगर एक दफा अरेंज हो गया तो दोबारा तो नहीं आ सकता ना सर। अब इसे सवाल में देखो, इन ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट, अगर आपके पास एक चीज पड़ी हुई है, अगर आपने उसको एक जगह पे रख दिया, अब दोबारा तो उसको नहीं आप कहीं अरेंज कर सकते ना उस एरिया में। सर अगर उसमें मेंशन नहीं है तो फिर हम ला सकते हैं। इस तरह से देखो हसन, सवाल को हम थोड़ा सा और अरेंज करते हैं। फर्स्ट करो, आपके पास गिलास है, आपके पास टेबल है और आपके पास कप है। सॉरी, कप के चेक कर लेते हैं और आपने इनको अरेंज करना है। आपके पास ये सिर्फ 3 चीजें ही हैं। यू हैव नथिंग मोर इन योर सैंपल, यू हैव नथिंग मोर इन सैंपल। अगर आपने ग्लास को एक जगह रख दिया आपने सैंपल में, तो आप बात दूसरे तो ग्लास नहीं आप ला सकोगे ना। यू कैन नॉट
pick glass again उस possible arrangement में. Going to be one possible arrangement. या Right. एक possible, अब देखिए एक possible arrangement ये है, एक ABC है, दूसरी possible arrangement ACB है. So think of it in like of this: glass, table and chair. एक possible arrangement में glass बार बार तो नहीं आ सकता ना आपके लिए, glass तो एक दफा ही आएगा. अगली अरेंजमेंट में आप इसको चेंज कर सकते हो, जैसे ग्लास इधर रख दो, चेयर उधर रख दो. Right, sir. Am I making sense, Hassan? Yes, sir, but maybe we'll do more problems and then we will, get familiar with बिल्कुल how बिल्कुल to pick up upon these things. बिल्कुल. अब अभी अगला सवाल जो आ रहा है उसमें हम ये करने जा रहे हैं, जैसे हमने अभी सिंपल यहाँ बात की है कि व्हाट इफ यू आर रिक्वायर्ड टू अरेंज द फॉलोइंग लेटर्स ABCD. अगेन वही चार चीजें अरेंज करनी है, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा. लेकिन what if you are required to arrange only 2 letters from all the complete set? What if you are required to arrange only 2 letters? यानी आपके पास मार्केट में आपके पास जो है, फर्स्ट को आप मार्केट जाते हो हसन, मार्केट में जाके आपको पता चलता है कि मार्केट में 4 चीजें अवेलेबल हैं. आपके पास मार्केट में है ये 4 चीजें: ग्लास, चेयर, टेबल, और साथ हम अब एक और हम चीज ऐड कर लेते हैं, बाइक. अज्यूम कर लो हसन, आपके पास ना 2 चीजें लेने के पैसे हैं, आपके पास 2 चीजें लेने के पैसे हैं. यू कैन बाय एनी 2 थिंग्स. यू कैन नॉट बाय ऑल 4 थिंग्स, बट यू कैन बाय 2 थिंग्स, अज्यूमिंग के प्राइसेस आर इक्वल, यानी प्राइसेस पर भी ज्यादा ना सोचो इसके ऊपर. तो व्हाट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कैन यू टेक? आप क्या करोगे? आप ये करोगे, आपके पास 2 चीजें लेने की ऑप्शन है. अब हसन मुझे ये बताओ, पहली चीज लेने के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस आपके पास पड़े हैं? हाउ मेनी थिंग्स यू कैन बाय? अगर आपको पहली चीज लेनी है, हाउ मेनी ऑप्शंस? 4, sir. 4. अब 4 आपने ले ली. अब अगली आपके पास ऑप्शंस कितनी है आपके पास हसन, अगली चीज को पिक करने के लिए? Again, I would say 4 if without replacement. Without again, Because the shop won't have any only one chair or only one glass. I'm saying that they have only like 4 things in that market, and you can only pick 2 things, and you can only pick All right. 2 things. So okay. So in that case, I guess with replacement, sir, or without replacement. Let's just say without replacement. Let's just say without replacement. If with replacement, then every 4 multiplied by 4 होगा. 4. लेकिन अगर रिप्लेसमेंट है, इसी तरह ऊपर जो है ना, अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो फिर तो ऑब्वियसली 3 होगा. हाँ, फिर तो ऑब्वियसली 3 होगा ना. ठीक है. इस चीज को समझाने के लिए ना, मैं आई गेस मुझे ना उस चीज को मुझे पहले लेके आना पड़ेगा, ताकि ना ये चीज हम पहले क्लैरिफाई कर लें. आई थिंक मुझे ना अपने स्लाइड्स में इस ऑर्डर को मैं लेके आता हूँ, और उससे ना हमारा ये सारा क्लियर हो जाएगा. अभी गाइस, जब भी आप लोगों ने सिलेक्शन करनी है ना आपने, या आपने कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, तो यू नीड टू ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ, एंड दीज आर दीज क्वेश्चंस. अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ. Suppose we have 3 people, Raza, Zain and Atik. How many different sets of birthdays can they have in the following case? Given they can all have birthdays on the same day. They all can have birthdays on the same day. So how many days are there in a day? So how many days are there in a year? 365. 365. Let me use some marker again. So let me use over here 365. So there are 3 people, and how many days are possible for them? It's like 365 for 1. अगले के लिए क्या होगा? Given all they can have birthdays, 365. क्योंकि given all they can have birthdays on same day, it's possible that they can all their birthdays on same day, which means there is no replacement. अब देखो, मैं लिखा नहीं हुआ यहाँ पे हसन, if you see मैं देखो, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं हुआ. We have to make sense out of these things. Given all they have can birthdays on same day, which means that they can repeat again. 365. और तीसरे बंदे के लिए क्या होगा? तीसरे बंदे के लिए क्या होगा गाइस? It's like 365. तो ये क्या हमारे पास टोटल नंबर ऑफ
कॉम्बिनेशन कितने आ जाएंगे 365 इंटू 3। तो यहाँ पे देखो इसका एक फार्मूला है, फार्मूला बेसिकली गाइस ये है n⁻k। 3 लोग हैं और 365 डेज हैं, तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बन रहे हैं 365 इंटू 3। अब अगले केस में आ जाओ, इफ वन पर्सन हैज बर्थडे ऑन सम डे, अदर पर्सन कांट हैव बर्थडे ऑन दैट डे। उसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होगा, पहले बंदे की बर्थडे 365 डेज पे होगी, दूसरे बंदे की बर्थडे अब कितने दिन पे होगी गाइस 364, 364, और तीसरे बंदे की बर्थडे कितने डेज पे होगी 363 आई गेस। बिल्कुल, और आपने इसे 3 पिक कर लिया आपने। इस केस में ना, इस केस में बताओ क्या हो रहा है, इस केस में हो ये रहा है, यू आर डूइंग दिस थिंग इज कॉल्ड ऑर्डर सेट विद रिप्लेसमेंट। दिस थिंग इज कॉल्ड ऑर्डर सेट विद रिप्लेसमेंट, with replacement. In this case, we are saying order set without replacement. Order set without replacement. ठीक है, और ये जो तीसरा केस है ना, इसमें बताओ क्या होगा, इसमें होगा अनऑर्डर्ड सेट विदाउट रिप्लेसमेंट। अनऑर्डर्ड सेट विदाउट रिप्लेसमेंट। मैं अभी इस चीज पे आता हूँ। आई थिंक मैं कॉम्बिनेशंस को मैं अगली क्लास में ना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि हमारी क्लास का टाइम एंड हो गया एंड आई डोंट वांट टू एक्सटेंड इट फर्दर। अब यहाँ पे क्या होगा जनाब, अनऑर्डर्ड सेट में यहाँ पर होगा बेसिकली ये कि 365, 364, 363 ये आपने बनाया, बताओ आपने कैसे है, आपने परम्यूटेशंस किए, आपने क्या किया, आपने 365 में से ना आपने तीन लोग आपने पिक किए। आपने यहाँ पे इस तरह से बन रहा है, ये फॉर्मूला ऐसे बनता है 365 फैक्टोरियल ओवर 365 माइनस 3, और वो जब आप माइनस करोगे तो आपके पास ये बन जाएगा। तो यू आर पिकिंग 3 डेज। अनऑर्डर्ड सेट विदाउट रिप्लेसमेंट को मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा कि इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, इन दोनों में फ़र्क क्या है। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि यहाँ पे, क्योंकि ना आई थिंक दिस विल मेक मी मोर टाइम, लेकिन आई हैव जी आप सर आप क्लास के बाद स्लाइड्स एलएमएस पे शेयर करेंगे? मैं एलएमएस पे स्लाइड शेयर कर दूंगा ना, एलएमएस पे स्लाइड शेयर कर दूंगा मैं। अच्छा, एक चीज जो मैं आप लोगों के लिए मैं तैयार करके लेके आया था, कैन एनीवन टेल मी हाउ मेनी नंबर्स कैन वी काउंट विद वन हैंड? राफे आप म्यूट हो। सर 15। 15 कैसे? सर क्योंकि लाइक उंगली पे 3 डब्बे होते हैं ना, तो 3 into 5 15। अच्छा 15। अच्छा एनीवन एल्स? नहीं, अच्छा फिंगर्स को, अगर फिंगर्स को लो, डब्बों को भूल जाओ, क्या पता कुछ के डब्बे मिसिंग हो, बाद में मुझे कहें आप में क्या सर आपने हमारी किस्मत में दोष निकाल दिया, तो नहीं ये रहने दो यार, लोगों ने भी गालियाँ देनी है मुझे, तो लिहाजा लेट्स फॉरगेट अबाउट इट, एवरीवन हैज 5 फिंगर्स, ठीक है। तो कैन एनीवन टेल मी कि आप इन 5 फिंगर से आप कितना गिन सकते हो? नबिया सेड 5, दानियल सेड 10। दानियल ने बताओ क्या किया, दानियल ने ना यहाँ से 5 किया और फिर 10 इसने उल्टा कर लिया, एंड दिस इज अ गुड टेक्निक। व्हाट इफ आई कैन से आई कैन काउंट अप टू 31 यूजिंग माय 5 फिंगर्स? व्हाट विल यू से? आप लोगों को बस लगता है सर का दिमाग चल गया, ये 5 उंगलियों से 31 कैसे गिनेंगे? मैं आपको दिखाता हूँ। अब गाइस मैं बहुत ध्यान से सुनना, दिस इज जस्ट फॉर योर इंटरेस्टिंग, काउंटिंग इजी कैसे हो सकती है। लेट मी स्टॉप द स्क्रीन शेयर। हाउ टू स्टॉप द स्क्रीन शेयर, या। तो गाइस ये मेरी 5 उंगली है, और इन 5 उंगलियों में अब क्या मैं करने लगा हूँ, ये जो है ना, ये मेरा अंगूठा, ये मेरा अंगूठा जो है, दिस इज 2 0, ये 2 की पावर 0 है, इसे इट इज 1, ये 2 की पावर 1 है, इट इज 2। ये जो मेरी मिडिल फिंगर है, अच्छा बीच में मिडिल फिंगर भी आएगी, प्लीज टेक इट इन टर्म्स ऑफ काउंटिंग, आई एम नॉट ट्राइंग टू गिव इट दिस टू एनीवन। दिस इज 2 raised to power 2 4, दिस इज 2 raised to power 3 8, एंड दिस इज 2 raised to power 4 16, ठीक है। तो लिहाजा नाउ, अच्छा तो वहां पे अब क्या होगा जनाब, अब यहाँ पे हम इसको बंद करते हैं अपनी मुट्ठी को। 1 के लिए मेरा अंगूठा खुलेगा, दिस इज 1।
2, this is 2. This is what guys? 2 plus 1, 3. ठीक है? 4, this is 4. This is 5. This is 6. This is 7. And this is 8. This is 9. And this is 10. This is 11. And this is 12. This is 13. This is 14. This is 15. This is 16. This is 17. This is 18. This is 19. अगला क्या आएगा? And this is so let me, this is 20. 16 plus 4, 20. This is 21. This is 22. This is 23. And 16 plus 8, 24. This is 25. And this is 26. This is 27. And this is 28. This is 29. And this is 30. And this is 31. So guys, अगर मैंने अपने एक हाथ से मैंने 31 काउंट किया है, how many can I count with 2 hands? Now this is a question for all of you. Sir, 62. दिखाओ फिर कितना काउंट कर सकता हूँ हम लोग अपनी सिर्फ उंगलियों से. तो गाइज कितनी उंगलियां थी मेरी अभी? 2 raised to power. मेरी उंगलियां कितनी है? मेरी उंगलियां गिनो कितनी है गाइज? How many fingers I have? 5. Yes. 5. और मैंने काउंट कितना किया मैं कहाँ तक जा चुका हूँ मैं? 2 raised to power 5 minus 1 which is 31. यही हुआ था. इन 5 उंगलियों से मैंने कितना काउंट किया गाइज? मैंने 31. और अगर मैं 10 उंगलियां लेके आ जाऊं फिर मेरे साथ मैं कितना काउंट कर सकता हूं मैं? It is 1023. With these 10 fingers, I can count up to 1023. These 5 fingers. अपने फिंगर्स को जाके देखना कि इसमें अगर आपने तस्बीह शस्बीह पढ़नी हो और तस्बीह आप अगर नेक्स्ट टाइम पढ़ रहे हो और आपने कोई 100 आपको करना हो तो आपने ऐसे उंगलियां करते रहना. आप घर वाले समझेंगे इस पागल हो गया, इसको यो कर रहे हैं, लेकिन आप अंदर से आप अल्लाह की तस्बीह कर रहे होंगे आप. तो दिस इज अ वेरी गुड. यू डोंट नीड एनी तस्बीह. योर फिंगर्स आर इनफ फॉर यू. अल्लाह ताला ने आपको 10 उंगलियों में आपको 1023 तक आप गिन सकते हो. ठीक है. और गाइस अगर आप लोगों की पाँव की उंगलियां भी चलती हैं ऐसे, आप यानी उसको ऊपर बंद कर सकते हो. तो यू हैव 220 minus 1. So you can count up to 1 million. Can someone please give me this number? What this number is? Sir, end में 9 आएगा इसके. Sir, 1,48,575. 1,48,000. 575. सर आपने एक 0 मिस कर दिया. अच्छा मुझे नंबर बताओ. टोटल मुझे नंबर बता दो. 1,04,1,048,575. 575. तो गाइज अगर आपकी पाँव की उंगलियां भी चलती हैं तो आप बस अपने हाथ पाँव से आपकी काउंटिंग पूरी हो गई आपकी आज. ठीक है. आई थिंक आई शुड हैव डन दिस बिफोर द क्लास. मैंने कहा इसको मैं एंड में रखूंगा इसको. तो आई एम सॉरी आई कुडंट कंप्लीट माय लेक्चर जो मैंने प्लान किया था, लेकिन आई गेस हमारे टाइम से ज़्यादा बेहतर ये है कि हम लोग ये चीज़ें सो डू प्रैक्टिस दिस थिंग. मेरे अपने हाथ को देखकर प्रैक्टिस करना. एक दफ़ा हाथ पे चढ़ जाए तो यू कैन शो इट टू एवरीवन कि हम एसडीए में ये पढ़ रहे हैं. तो पूछे एसडीए में क्या पढ़ रहे हो जी? ना हम हाथ से काउंट करना सीख रहे हैं. हम 1000 हम हाथ से काउंट कर सकते हैं अपने. अच्छा ये 31 है बाय द वे. जी लाइबा
सर मेरा क्वेश्चन है, आपने 31 काउंट किस तरह किए? मतलब आपने 2 पावर 4 पिंकी फिंगर पे रखा है? ये देखो, ये मेरा 2 0 है, ये अंगूठा मेरा 2 0 है, दिस इज माई 2 1, ओके दिस इज माई 2 2, सही है। दिस इज माई 2 3, 2 raised to power 3, दिस इज माई 2 raised to power 4, ये चीची मेरी 2 raised to ओके power आपने 4 है। पावर्स में काउंट किया, ठीक है। हाँ। ओके तो लिहाजा दिस इज, वो हंस रहा है, उसने मैं चीची बोला, मैंने यार इट्स सिंपल, छोटी उंगली मैंने बोल रहा हूँ यहाँ पे। सो दिस इज लाइक 2 raised to power 6 16, so these are like 16। तो अब अगर मैं ये मेरा अंगूठा बन गया। अब मैं इस पे अगर आ जाऊँ तो ये मेरा जो अंगूठा है, यानी एक अंगूठा तो मेरा हो गया था, अब ये मेरा अंगूठा 2 raised to power 6 है, दिस इज माई 2 raised to power 6, दिस इज 2 raised to power 7, 2 raised to power 8, ठीक है, 2 raised to power 9, 2 raised to power 10, ये सॉरी 2 raised to power 5, 2 raised to power 6, 2 raised to power 7, 2 raised to power 8, 2 raised to power 9। तो दीज आर लाइक दिस। तो 31 तो मैंने इस पे कर लिया था। अब अगर मुझे 32 करना है तो 32 के लिए मेरा ये अंगूठा 33, 33 ये हो गया, 34, 35, ठीक है, 35 मैंने ये बना लिया। अब मुझे 35 के बाद 36 करना है, तो 4 ऐड करना है, 36, फिर 37 के लिए ये। तो इस तरह से मैं, आप देख रहे हो, मैं अपने सारे अंगूठे यूज कर कर आके मैं 1000 तक पहुंच सकता हूँ। तो इस तरह से सारे नंबर्स अब चलते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वे टू काउंट थिंग्स। तो ये उसमें से चीज़ें इसमें अरेंजमेंट है। तो इस तरह से ना उसमें हम वो चीज़ें हम अरेंज करते हैं। तो गाइज आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। there are some confusions during the lectures. I will try to address those again in the coming lecture again. अभी मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, कमेंट्स में लोगों ने ठीक ठाक जिसे कहते हैं ना, मेरी क्लास ली हुई है। बोनस मार्क्स इफ यू यूज दिस इंस्टेड ऑफ अ कैलकुलेटर इन एग्जाम्स, या बोनस मार्क्स, लेकिन टाइम कम होगा तो लिहाजा प्लीज यूज कैलकुलेटर। वकार ज़का के शो में सिलेक्शन, अच्छा ये सीख लो तुम, चले जाना मेरी तरफ से कि वकार ज़का के शो में जाके सिलेक्ट कर लेना। मैं तो नहीं जाऊँगा भाई, ऐसा काम मुझे नहीं पसंद आप लोगों के लिए। तो आई गेस गाइस दिस इज इट। अभी तो लेक्चर में आई अपलोड माई स्लाइड्स, तो उसमें कुछ चेंजिंग मेजर्स कर लूँ उन स्लाइड्स में, उन कॉम्बिनेशंस में। आई गेस कुछ चीज़ें जो हैं मैं उसमें कुछ के मैं सोल्यूशंस डाल भी दूंगा, स्पेशली वो वाला जिसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आ रहे हैं, तो वो हम डाल देंगे उसके ऊपर। लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और फीडबैक, आई ट्राई टू एड्रेस देम एज सून एज पॉसिबल। मेरा थोड़ा सा ये हफ्ता है अभी हेक्टिक है, so I apologize, I won't be able to keep office hours in this week, लेकिन I promise you कि इंशाल्लाह on next Monday we will have our first office hours. So there's that. So if you have any questions, let me know. I'm stopping the recording.